Hello everyone, this is your Bandhani Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed the types of lines like intersecting lines and parallel lines and types of angles based on their measurements. Okay, and in today's session we will discuss the angles in pairs like adjacent angles, linear pairs and vertically opposite angles and axiom and theorems based on these angles. Okay, so let's start it. Okay, so first come is complementary angle. Here we will consider a pair of angles. Okay, so what are the complementary angles? Here we are not talking about one angle. Okay, here we will consider pair of angles. Okay, so complementary angles. So two angles whose sum is always 90 degree will be called as complementary angles. Okay, suppose if we have two angles, one is of 30 degree, okay, and another is of 60 degree. Here there are two angles, one is of 30 degree and second one is of 60 degree. Now do their sum. 30 plus 60 is what? 90 degree. 30 plus 60 is 90 degree. So these two angles will be called as complementary angles because their sum is 90 degree. Okay, so in complementary angles the angle sum is 90 degree. These two angles are complement of each other. ये दोनों 30 का अगर हम बोले कि complement angle क्या होगा? What is the complement angle of 30? That will be 60. Okay, if we take of 60, then complementary angle of 60 degree, that will be 30. Okay, 30 का complement 60 and 60 का complement 30. They will be called as complement of each other. Okay, so any two angles, if their sum is 90 degree, they will be called as complementary angles and they will also be complement of each other. दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? Complement होंगे. Okay, now next is similarly supplementary angles. So here, if the sum of two angles is 180, if the sum of two angles is 180, they are called as supplementary angles. Okay, suppose if you have two angles, one is of 60 degree and another is of 120 degree. If we do their sum, so it will be equals to 180 degree. Okay, so these two angles x and y are called supplementary angles. Also they are supplement of each other. Okay, if we find supplement of 60, so it will be 120, and if we call supplement of 120 degree angle, then it will be 60 degree. Okay, so they are supplement of each other. एक दूसरे की क्या है? सप्लीमेंट होंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स. ओके, एडजेसेंट एंगल्स. So see here, if two angles are such that they share its vertex and also they share one arm, and the two non-common arms are on either side of this common arm. Let's take a figure here. Suppose
Now see here. Here there are two angles. One angle is AOC, that is suppose X, okay, and angle BOC, this is suppose Y. Now see here. Here X and Y are adjacent angles. X and Y are adjacent angles. Why? See here. These two angles have same vertex O. These two angles have same vertex. You can see here. Both the angles having same vertex O. Okay. And these two angles also having the same arm OC. OC is one of the arm of this angle X as well one of the arm of angle Y. Okay, so here OC arm is common between these two. Okay, now see here, the non-common arm means the arm OA and the arm OB. These two are called what? Non-common arm. क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉमन नहीं है इन दोनों एंगल में, सिर्फ एक ही आर्म कॉमन है, दैट इज OC. ओके, and these two non-common arms are on either side of this OC. दोनों ही आर्म क्या है, OC की एक इस साइड है, दूसरी इस साइड है. दोनों सेम साइड तो नहीं है, मीन्स ऑपोजिट साइड में है, OC के दोनों साइड में है. तो एडजेसेंट एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दे विल हैव, फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स. दोनों ही एंगल्स में क्या होगा, वर्टेक्स सेम रहेगा. जैसे कि यहाँ पर क्या है, O वर्टेक्स है. ओके, यहाँ पर जो कॉमन वर्टेक्स क्या है, O है. ठीक है. नाउ सेकेंड, अ कॉमन आर्म. एक आर्म क्या होगी, कॉमन होगी दोनों ही एंगल्स में, and that is OC in this case. Okay, this arm is common between these two angles. And the third point is that complete these angles, that two non-common arms, those are OA and OB. Okay, these two are non-common arms are on either side of common arm. Okay, तीन चीज़ें होनी चाहिए एडजेसेंट एंगल्स को डिफाइन करने के लिए. क्या कि इन दोनों एंगल्स के जो वर्टेक्स है जिस पर ये दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए. ठीक है, और दोनों ही एंगल्स के बीच में एक आर्म की क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए. ठीक है. अब बाकी की जो बची हुई आर्म्स है, मतलब OA और OB, यहाँ पर क्या है, OA and OB are two non-common arms of these two angles. Okay, they are lying on either side of this common arm. दोनों एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या है, इस कॉमन आर्म के दोनों साइड में होंगी. सपोज अगर हमारे पास ये फिगर है, if I say angle ABC and angle ABD, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल ABC एंड एंगल ABD, आर दे एडजेसेंट एंगल्स, नो. वाई, देखिए ABD एंड ABC का वर्टेक्स तो कॉमन है, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग तो ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है कि एक कॉमन आर्म होनी चाहिए. तो देखिए AB
दोनों ही एंगल्स में कॉमन है, सेकेंड पॉइंट भी आपका फुलफिल हो रहा है। द थर्ड पॉइंट क्या है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है, मतलब बी डी एंड बी सी, यही इन दोनों एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म्स है, वो क्या हैं, कॉमन आर्म्स के दोनों साइड में लाई कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ कॉमन आर्म। ओके, दैट इज वाई दीज विल नॉट बी एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? एडजेसेंट आपके नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है कि जो दो नॉन कॉमन आर्म हैं इन दोनों एंगल्स की, वो कॉमन आर्म के दोनों साइड लाई करनी चाहिए, तब आपके ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, सो एनी टू एंगल्स विच हैव सेम वर्टेक्स एंड हैव वन कॉमन आर्म एंड द टू नॉन कॉमन आर्म्स आर on either side of the common arm, then only they will call as adjacent angles. Okay, तो ये दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे? नॉट एडजेसेंट, एडजेसेंट नहीं होंगे। ओके, सो नेक्स्ट चलिए इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो if two adjacent angles are such that their non-common arm form a line, then those adjacent angles are called as linear pair of angles. See here, suppose if there are two angles such that, see here, angle POR and angle QOR, two adjacent angles, because they have same vertex O and also they are having one common arm, but their non-common arm, which are OP and OQ, are forming a straight line. Then these two adjacent angles will be called as linear pair of angles. Okay, here angle, if suppose this is angle X and this angle is Y. Okay, so X and Y are two adjacent angles, but their non-common arm forming a straight line. Okay, so here angle X and angle Y forming linear pair. Linear pair of angles. Now see here, x और y आपके क्या स्ट्रेट एंगल, यहाँ पर देखिए O पर अगर हम देखें, ये क्या है आपका एंगल? स्ट्रेट एंगल ही है, क्योंकि ये किस पर? स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स द सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ से एक और चीज़ निकल कर आती है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स आपके लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है, देन दे मस्ट बी सप्लीमेंट्री, बिकॉज देयर सम विल बी सप्लीमेंट्री। हियर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई विल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, इन दोनों ही एंगल्स का सम क्या होगा? 180, बिकॉज दे टुगेदरली मेकिंग अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये क्या है? ये स्ट्रेट एंगल इन दोनों के सम के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर देन दे मस्ट बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो लीनियर पेयर ऑलवेज विल बी ऑफ 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट vertically opposite angles. If we have two intersecting lines, means if two lines intersect at a point, then they will form vertically opposite angles. Suppose these two lines are intersecting
AB and PQ are intersecting at this point O. Okay, now see here, these two lines are making four angles. Angle 1 and this angle, suppose its name we take 2, then this 3 and this 4. So total 4 angles are forming here when two lines intersect. Okay, now see here, if we take angle 1 and angle 3, means these two angles, see here, their vertex is common, vertex is same. Both angle 1 and angle 3 have same vertex O, but they are opposite to each other. क्या है ये? Opposite है. That is why we will call these angles 1 and 3, pair of 1 and 3, as vertically opposite angles. Vertically means they will have same vertex, but they are opposite to each other. That's why we will call these two angles as vertically opposite angles. Okay, now next pair is also forming here. See, angle 2 and angle 4, these both also opposite to each other and having same vertex O. Okay, इन दोनों एंगल्स में भी क्या है, वर्टेक्स सेम है बट एक दूसरे के ऑपोजिट फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इन एंगल्स को भी हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो हियर देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन two lines intersect each other at one point. Okay, so angle 1 and angle 3 and angle 2 and angle 4 are vertically opposite angles. यहाँ पर क्या है, 1 and 3, 2 and 4, these pair is of vertically opposite angles. Okay, so there are two pairs here. Now in this chapter there are two axioms which we have to discuss here. As we know, axioms are universal truth but they are not proved. Okay, axioms क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट होते हैं जो ट्रूथ होते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब यूनिवर्स में वो ट्रू होंगे बट दे आर नॉट प्रूव्ड, लेकिन उन्हें प्रूव नहीं किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में जो फर्स्ट एक्सियम है वो क्या है, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, सपोज वी हैव अ लाइन, ओके, दिस इज अ लाइन, सपोज PQ, ओके, दिस इज अ लाइन, एंड इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन एंड on this line a ray stands, suppose at this point the ray stands. Okay, suppose this point is O and this ray is OR. Okay, so this ray OR stands on this line PQ. Now what the statement is here, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. Then the two adjacent angle formed means we are talking about these two adjacent angles. Okay, if a ray stands on a line, then two adjacent angles so formed is of 180 degree. Okay, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा. सपोज ये एंगल x है और ये आपका y है. ठीक है, आपने क्या किया, एक लाइन है, उस लाइन पर किसी पॉइंट पर एक रे स्टैंड कर रही है, तो अगर एक रे स्टैंड करेगी तो वहाँ पर वो दोनों एंगल्स कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे. क्यों, देखिए यहाँ पर दोनों ही x और y एंगल का वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, और एक आर्म OR भी कॉमन है, और जो दो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है, इस कॉमन आर्म के दोनों साइड में है. तो ये x और y आपके कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए. बट देखिए यहाँ पर PQ क्या है, लाइन है, लाइन विल बी स्ट्रेट. तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये जो एंगल है वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, मीन्स ऑफ 180 डिग्री. ओके, तो द सम ऑफ दीज टू एंगल्स x एंड y विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, तो हमारा एक्सियम फर्स्ट यही कहता है कि इफ वी हैव अ लाइन and we stand
a ray on it, then the adjacent angles so formed is of 180 degree. ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स जो इस तरीके से बन रहे हैं उनका सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, यहाँ से क्या, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो अभी जो हमने लास्ट लीनियर पेयर डिस्कस किया था वहाँ पर भी क्या था, एडजेसेंट एंगल्स थे। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स इस तरीके से थे कि उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है, एक लाइन फॉर्म कर रही थी। यहाँ पर भी तो यही चीज़ है कि एक लाइन पर अगर आप एक रे को स्टैंड करते हैं और दो एडजेसेंट एंगल्स इस तरीके से बन रहे हैं तो उनका सम क्या होगा, 180 होगा। ओके, सो दैट इज, सो दिस एक्सियम इज़ फॉर व्हाट, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ओके, तो ये आपको एक्सियम याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सियम क्या है, देखिए, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। इसका क्या है, ये कन्वर्स ही तो है, उल्टा ही है। ठीक है, इसका उल्टा कर दिया हमने कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास इस तरीके से हैं कि उनका सम क्या है, 180 है। ठीक है, तो श्योरली उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होगी वो क्या है, एक लाइन को फॉर्म करेगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉलो फॉर लीनियर पे, कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स आपके कुछ इस तरीके से हैं कि दोनों का सम क्या आ रहा है, ये x है ये y, ये आपको दे रखा है, x और y का जो सम है वो क्या है, 180। और वो कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब ये नॉन कॉमन आर्म्स क्या होंगी, आपकी लाइन फॉर्म करेंगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, तभी ये दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो सकता है। ओके, तो ये दोनों ही, सो दीज टू एक्सियम्स टुगेदरली इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियम। ओके, क्योंकि ये दोनों ही एक्सियम किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर एक रे एक लाइन पर स्टैंड करी तो दो एडजेसेंट एंगल्स आपके इस तरीके से बन रहे हैं कि उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या है, एक लाइन ही है, तो ऑब्वियसली दे विल बी लीनियर पेयर। एंड यहाँ पर देखिए, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, ओके, सो देयर नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ लाइन। तो यहाँ पर भी आपके एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं, इस तरीके से हैं कि उनकी नॉन कॉमन आर्म लाइन बना रही है। और यहाँ पर भी जो स्टेटमेंट है एक्सियम फर्स्ट है, वो भी दोनों ही अल्टीमेटली किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, लीनियर पेयर एक्सियम की तरफ। ओके, तो इसलिए इन दोनों एक्सियम को लीनियर पेयर एक्सियम बोला जाता है। ठीक है, इन दोनों ही स्टेटमेंट या दोनों ही एक्सियम को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम। तो whenever we use these axiom in any question to prove anything where these statement or these axiom will be used, then in bracket you have to mention their linear pair axiom. Okay, अगर आप इन दोनों में से कोई भी axiom यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी क्वेश्चन में, तो आप ब्रैकेट में अगर रीजन देते हैं जहाँ पर इनका यूज़ हो रहा हो तो आप वहाँ पर क्या देंगे, लीनियर पेयर एक्सियम। ओके, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके लीनियर पेयर एंगल्स के ही लिए है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अभी हमने जब एंगल्स इन पेयर्स डिस्कस किया तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स डिस्कस किया था। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, ये जो पेयर दो एंगल्स का बन रहा है वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, जो कि वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो अब अभी तक तो हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब क्यों इक्वल होते हैं, दैट वी विल प्रूव हियर, ओके, बाय अ थ्योरम। सो लेट्स सी दैट थ्योरम। तो थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट क्या है, देखिए आपको पता ही है कि थ्योरम क्या होती है, एक्सियम क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, बट हम उनको क्या है, प्रूव नहीं करते हैं। ठीक है, थ्योरम आर द स्टेटमेंट्स विच वी प्रूव। थ्योरम कौन से, वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, लेकिन इन्हें हम क्या प्रूव करते हैं, बाय द यूज ऑफ एक्सियम और डेफिनेशन और एनी फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरम जो आपके इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम है, दैट इज फॉर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। व्हाट द स्टेटमेंट हियर, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन
एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और वहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, देन दे मस्ट बी इक्वल। यही ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि क्यों इक्वल होते हैं, कैसे इक्वल होते हैं। तो देखिए, सपोज वी हैव टू लाइन्स हियर, फर्स्ट इज ए बी, ओके, एंड नेक्स्ट इज पी क्यू, okay, so here AB and PQ are two intersecting lines, okay, and they are intersecting at point O, suppose, okay. Now see here, the vertically opposite angles, suppose this one and this, and these two are in pair and these two are in pair, okay. So here how we will प्रूफ हेयर, सी एंगल, कौन कौन सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे यहाँ पर है। सपोज इफ वी गिव देम नेम, सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज एंगल 3 एंड दिस एंगल इज 4, ओके। सो एंगल 1 and 2 are vertically opposite angles, so we will write here with their name, that is angle AOP and angle BOQ. These two are vertically opposite angles. I am writing here in short, okay, vertically opposite angles, okay. And this is the first pair, and second pair of vertically opposite angles is angle AOQ and angle POB, vertically opposite angles, okay. So these two are the pair of vertically opposite angles. Now what we have to prove here? To prove, क्या हमें प्रूव करना है कि एंगल AOP is equals to angle BOQ, okay, and दूसरा क्या प्रूव करना है, दूसरा पेयर भी हमें प्रूव करना है, एंगल AOQ is equals to एंगल POB। इन एंगल्स को हमें इक्वल शो करना है, तो दैट वी हैव टू प्रूव। नाउ सी, अब यहाँ पर देखिए, POQ is a line, POQ is a line and AO is a ray on this line POQ, okay. And as we have discussed the axiom 1, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is what? 180। ये एग्जाम हमने अभी डिस्कस किया था, क्या कि अगर एक लाइन है और उस पर एक रे स्टैंड करती है, तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम क्या होगा? 180 होगा। तो उसी लीनियर पेयर एग्जाम का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, सिंस POQ is a line and OA is a ray stands on this line, okay. So therefore angle AOQ plus angle AOP is equals to 180 डिग्री, ठीक है। POQ आपकी लाइन हो गई, OA एक रे है इस लाइन पर, तो ये दो एंगल, एंगल AOQ एंड एंगल AOP विल इक्वल्स टू 180। इन दोनों एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा? 180 होगा। किस का यूज़ कर रहे हैं? जो भी हम एक्सियम यूज़ करें, कोई भी स्टेटमेंट यूज़ करें, तो उसको हमें यहाँ फ्रंट में आपको एज अ रीजन शो करना पड़ेगा। तो इन ब्रैकेट y लीनियर पेयर एक्सियम,
ओके, ये जो चीज़ हमने लिखी है वो किसका यूज़, लीनियर पेयर एक्सियम का यूज़ करके लिख रहे हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 1 आप दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाइन ए ओ बी, दिस इज ऑल्सो अ लाइन ए ओ बी, ओके, एंड ओ पी इज हेयर अ रे that stands on this line AOB, then angle AOP plus angle POB will equals to 180 by linear pair axiom। यहाँ पर भी क्या है, AOB एक लाइन है और उस पर रे PO आपकी स्टैंड करी, तो ये इस तरीके से जो दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, एंगल AOP एंड एंगल POB, their sum will be 180। okay, so same we will write here, since OP is a ray on line AOB, okay, this we have given here, okay, that is why angle AOP plus angle POB equals to 180. This is equation number 2. Why what? Why same linear pair axiom, ओके, किसका यूज़ करके हमने ये चीज़ लिखी है, लीनियर पेयर एक्सियम का यूज़ करके। अब देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड पार्ट है दैट इज सेम 180 डिग्री 180 डिग्री, ओके, सिंस इट्स राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल of these two equation, then surely the left hand side part be equal, okay, इन दोनों ही इक्वेशन का राइट हैंड साइड पार्ट क्या है, 180 180 है, इक्वल है, तो इसका मतलब इनका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट भी इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मीन्स AOQ प्लस एंगल AOP विल इक्वल्स टू दिस लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ सेकेंड इक्वेशन। सो एंगल AOP प्लस एंगल POB, ओके, एंगल AOP दोनों ही साइड क्या है, कॉमन है, तो क्या होगा, तो देखिए एंगल AOQ प्लस एंगल AOP, अगर इस एंगल AOP को आप लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एंगल AOP एंड इक्वल टू दिस एंगल POB, ओके, सो प्लस माइनस सेम एंगल will be cancel out, so here we are left with angle AOQ that is equals to angle POB, ओके, ये जो इक्वल एंगल्स दोनों साइड राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ऐड हो रहे थे, तो वो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप डायरेक्टली भी ये चीज़ मैंने क्या किया, AOP को ट्रांसपोज किया है, ठीक है, आप डायरेक्टली भी अगर सेम एंगल ऐड हो रहे हैं, ठीक है, या सेम एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल AOQ किसके इक्वल हो गया, एंगल POB के, AOQ इज इक्वल्स टू एंगल POB, मीन्स एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल, वी हैव प्रूव्ड हियर, प्रूव कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर भी हमें प्रूव करना है कि एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल BOQ। तो अब हमें वो स्ट्रेट लाइन लेनी है जहाँ पर ये दोनों एंगल्स इंक्लूड हो रहे हों, ठीक है, मीन्स एक बार आपको कौन सी लाइन POQ लेनी है, तो ये दोनों एडजेसेंट होंगे, फिर आपको कौन सी लेनी है AOB, जहाँ पर ये दोनों एंगल एडजेसेंट होंगे, तो देखिए एंगल 3 क्या होगा, दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स के पेयर में कॉमन होगा, सो दैट विल बी कैंसल आउट एंड वी विल लेफ्ट विद एंगल AOP and angle BOQ, same procedure as we have done in proving this part, ठीक है। तो आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल
BOQ। ठीक है, इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट भी हम प्रूव कर सकते हैं। जब हमें ये दोनों एंगल्स प्रूव करने थे तो कौन सी लाइन कंसीडर करनी थी, जहाँ पर एंगल 1 आपका कॉमन आ रहा हो, मतलब POQ इन दो एंगल्स के लिए, देन AOB इन दो एंगल्स के लिए। तो ये जो कॉमन एंगल था 1 वो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये दोनों, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब हमें एंगल 1 और 2 प्रूव करने हैं इक्वल। ठीक है, तो हमें लाइन POQ लेनी है कि एंगल 1 और 3 एडजेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, और लाइन कौन सी, AOB लेनी है जहाँ पर एंगल 3 और 2 आपके एडजेसेंट हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखिए एंगल 3 इन तीनों एंगल्स में कॉमन है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा इसी तरीके से इक्वेशन बनकर, और हमारे पास क्या बचेगा, एंगल AOP एंड एंगल BOQ। ओके, तो इस तरीके से आप दूसरा एंगल्स को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड सम बेसिक पार्ट्स ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स, ओके, एंड 2 axioms and 1 theorem that is for vertically opposite angles. Okay, if you have any query, doubt related to today's session, please ask me on comment section. Okay, and in my next upcoming session we will discuss exercise 6.1. Till then, keep watching my channel. Thank you.